ma'am. Ma'am, your voice is not coming. Good evening, everyone. I was on mute, so that is why. Okay, so let's wait for all your other friends to join and then we shall start, right? Yes. Ma'am, this chapter is not finished. Ma'am. Excuse me, miss. Shashwat? Miss, can you please tell what we had done in the class as I had joined late as I had अभी तक issues with हमने network. कुछ भी नहीं किया. We haven't done anything till now. कितना late हुए हो? You're just 1 minute late. Miss, I thought that class was started at 6:30. Started at 6:45 only. Okay. Okay, miss. So अभी बाकी बच्चों ने भी join नहीं किया. 2 मिनट और रुकना है, ठीक है? I will be back in a second. Good evening, ma'am. Ma'am noted. Okay, good evening everyone. Right? चलो start करते हैं, ठीक है? तो लास्ट क्लास में हमने बहुत सारा कर लिया था. आज जो थोड़ा बहुत बचा है उसको कोशिश करते हैं खत्म करने की, ठीक है ना? So let's try कि चैप्टर आज फिनिश हो जाए. Okay, so we were talking about
contraception or contraceptive methods. These methods are used when we are trying to avoid pregnancy. Okay, particularly other than pregnancy, when we are trying to avoid sexually transmitted diseases also. So there are some diseases such as AIDS, syphilis, gonorrhea, एंड जेनाइटल वॉर्ड्स, हेपेटाइटिस, तो ये सब जो है ये डिजीजेस सेक्सुअली ट्रांसमिट होते हैं. सो इफ अ डिजीज्ड पर्सन गेट्स इन्वॉल्व्ड इन सेक्सुअल इंटरकोर्स विद अनदर हेल्दी पर्सन, तो जो हेल्दी पर्सन है उसको भी वो प्रॉब्लम हो जाएगी. ठीक है, तो ये भी अवॉइड करने के लिए. और दूसरा है प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए. तो प्रेगनेंसी अवॉइड करने का बेसिक वो क्या है कॉन्सेप्ट कि अगर फ्यूजन ही नहीं होगा गमीट्स का, जो ओवम और स्पर्म है दे विल नॉट बी एबल टू मीट, तो ना ही वो फ्यूज कर पाएंगे और ना ही फिर जाइगोट बनेगा, राइट, एंड दैट आल्सो वोंट लीड टू प्रेगनेंसी. दिस इज बेसिकली यूज्ड फॉर पॉपुलेशन कंट्रोल. ठीक है ना, पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए ये मेथड्स यूज किए जाते हैं. तो इसके अंदर अलग अलग कैटेगरीज हैं. द फर्स्ट कैटेगरी इज बैरियर मेथड्स. ठीक है, बैरियर मेथड्स के अंदर द मीटिंग ऑफ द टू गैमीट्स इज नॉट अलाउड. So सबसे पहला out of the barrier method is the condom. Okay, so it is a latex material, latex से बना होता है. It is something like this. Okay, so it's something like this, ऐसे करके दिखता है, right? So it is basically like a latex covering for the penis. Okay, so men wear it over their genital organ, and due to this the semen cannot enter into the female uterus or the female uterine tract. Then there is cervical cap. तो जिस तरह से condom is used by males, a cervical cap and diaphragm are used by females. ठीक है, so ये क्या होते हैं, these are something like this, ऐसे करके होते हैं ये caps जैसे. So the female can use them in their genital area and to the entry of sperms into their reproductive tract. ठीक है, इसे नोट कर लो जल्दी से. Noted. नोटेड. ओके, वेरी फास्ट. बाकी बच्चे जिन्होंने नोट नहीं किया वो नोट कर लो. Yes, मैं noting. ओके ओके. मैम डायफ्राम तो वो होता है मैम जो हमारे लंग्स के नीचे होता है. हाँ देखो, बेसिकली डायाफ्राम जो है वो एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, तो ये भी एक तरह का मेम्ब्रेन ही होता है, इसीलिए इसे भी डायाफ्राम बोलते हैं. ठीक है, टू थिंग्स कैन हैव द सेम नेम. अब जैसे कोरोना वायरस है और कोरोना आपने उसमें भी देखा ना, ओवम के अंदर भी, तो अलग अलग नाम रख देते हैं. ऐसी मतलब चीजों के सेम नाम हो सकते हैं. Means what a contraceptive. Somebody was saying something. नहीं कुछ, we had started talking about this, but हमने नोट नहीं किया था. ठीक है, अगर आपने नोट कर लिया होगा तो वो अलग बात है, बट वैसे मैंने नोट करने के लिए कहा नहीं था. चलो आगे चले. Ma'am, just a second. ओके ओके ओके, 1 मिनट. ठीक है, जल्दी से नोट करो. Ma'am, I'm noted. I'm noted. I think somebody was asking something. कोई कुछ पूछ रहा था ना? नहीं? चलो. Means what are contraceptives? Contraceptives are these devices which are used to avoid the spread of sexually transmitted diseases and to avoid pregnancy. ठीक है, so हम contraceptives में अलग अलग तरह के contraceptives पढ़ते हैं. First one is the barrier method. Then there are medicinal methods also, जिसमें हम कुछ medicines use करते हैं. Then there are creams also and gels also. उसके अलावा फिर there are permanent surgical methods also. ठीक है, तो
कॉन्ट्रासेप्टिव्स बेसिकली उनका पर्पस यही होता है टू अवॉइड fertilization and pregnancy and to avoid the spread of sexually transmitted diseases. ठीक है, ये लास्ट क्लास में हमने लिखा नहीं था कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में? अच्छा, डिस्कस किया था. ओके 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 ओके, वन सेकेंड, डू वन थिंग, एक जगह पे साइड पे लिख लो. प्रेफरेबली अगर थोड़ी बहुत जगह है तो ये बैरियर मेथड से पहले ही लिख लेना. ठीक है, दैट विल बी मच बेटर. I'm noted. I'm noted. Ma'am, noted. ओके, I'm noted. okay, so see, these are some images of the various barrier contraceptives. This is a diaphragm. ये यहाँ पे वैसे नहीं आना चाहिए. ठीक है, ये इमेज गलत है. These are condoms. Okay, so a barrier method is used during intercourse to keep sperm from traveling away from traveling through the cervix and into the uterus. Right? ये barrier method की definition है. We have to write this. Yes, yes, you can write this. ठीक है, तो ऊपर हमने types of barrier methods पढ़े हैं and नीचे this is the definition of the barrier method, right? I'm written. Okay, very fast. Please wait. Okay, okay, I'm waiting. Mama, this is same as above one. जी, Mama, it is the same as the above one. yes. चलिए आगे. Yes, ma'am.
ओके, फिर नेक्स्ट कैटेगरी आती है इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस. नाउ सी, जैसे जो बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं उन्हें आप एक्सटर्नली यूज करते हैं, राइट? दीज आर यूज एक्सटर्नली, सो दे कैन ऑल्सो बी थ्रोन अवे, राइट? उनको इंटरकोर्स के टाइम पे यूज करते हैं लोग, एंड आफ्टर दैट दे थ्रो दीज डिवाइसेस अवे, सच एज द कॉन्डम्स एंड दी सर्विकल कैप्स. लेकिन ये इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस जो होते हैं इन्हें हम एक्सटर्नली नहीं यूज करते. दीज आर यूज्ड, you can say these are rather put inside the system of a female uterus. ठीक है, वहां पे रहकर ये IUDs, इन्हें शॉर्ट में हम IUD बोलते हैं, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, तो IUD. ठीक है, तो ये IUD जो होता है, IUD इसे हम यूट्रस के अंदर इंसर्ट करते हैं. ओवर देयर इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीजिंग ईदर हॉर्मोन्स और सर्टेन केमिकल्स और यू कैन से एलिमेंट्स, जिसकी वजह से the sperms cannot survive in the uterus. ठीक है, जो sperms हैं वो फीमेल ट्रैक्ट के अंदर सर्वाइव नहीं कर पाते, उनकी डेथ हो जाती है. अब अगर जब sperm बचेगा ही नहीं, so there will be no fusion. Okay, and because there will be no fusion, there will not be any chances of fertilization also, right? So these IUDs are normally viable for 3 years to 5 years. यही इनका term और tenure होता है. And these are normally used by women who have already had their kids. मतलब कि if a female feels that I already have 2 kids and I do not want any more kids, ठीक है ना, जिसे हम family planning बोलते हैं. So these females can use these devices. But if a female has not had a child, she should not consider this because इनके side effects भी होते हैं. कई बार क्या होता है that without the knowledge of the female, this can be expelled out. ठीक है, अपने आप ही कई बार ये बिना फीमेल की नॉलेज के बाहर एक्सपेल आउट हो जाता है यूट्रस में से, पता नहीं लगेगा. या फिर कई बार हो सकता है, देखो यूट्रस के अंदर इस चीज को ऐसे इम्प्लांट किया जा रहा है. इट कैन ऑल्सो लीड टू एनी डैमेजेस इनसाइड. अंदर there could be infection, there could be a wound, it could lead to bleeding also. So it can also have harmful effects such as that it can make the female infertile. ठीक है, सो इफ अ वुमन हैज नॉट हैड हर चाइल्ड येट, उन्हें ये चीज प्रेफरेबली नहीं लगानी चाहिए. ठीक है, दे शुड नॉट गो फॉर दिस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड. ओके, सो ये देखो क्या होता है कि चलो इसके एग्जांपल देखते हैं. देयर इज वन टाइप व्हिच इज नोन एज कॉपर टी. टी समझते हैं सब बिकॉज इट इज इन टी शेप. जैसे टी शेप का होता है ना, इसीलिए इसको टी बोलते हैं. एंड कॉपर क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज इट इज रिलीजिंग कॉपर आयंस. ठीक है, तो जब इसे यहाँ पे लगाया जाता है ये कॉपर आयंस रिलीज करता है. सो कॉपर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर किलिंग द स्पर्म्स. तो जैसे ही स्पर्म्स यहाँ यूट्रस के अंदर एंटर करेंगे उससे ये कॉपर किल कर देगा. या फिर कई जो होती है वो हॉर्मोन्स रिलीज करते हैं. सो देयर इज दिस वन LNG-20, लीवोनॉर्जेस्ट्रल 20. ठीक है, दिस रिलीजेस हॉर्मोन्स. तो इन हॉर्मोन्स की वजह से क्या होता है कि बिकॉज द फीमेल यूट्रस हैज लॉट ऑफ दोज हॉर्मोन्स, द यूट्रस बिकम्स वेरी हॉस्टाइल टू द स्पर्म्स. तो वो खुद ही किल कर देगा स्पर्म्स को. ठीक है, तो ये एग्जांपल्स हैं IUDs के. लेट मी सी इफ देयर इज अ राइट अप फॉर IUD. हाँ, राइट अप नहीं है. Okay, so 1 second. Write down the heading intrauterine device और मैं लिखवाती हूँ आपको. ठीक है, तो इन्हें कोई ट्रेन्ड पर्सन ही वहां पे जाके इंसर्ट करेगा. ऐसे नहीं कि खुद से कोई भी पर्सन इसे इंसर्ट कर सकता है.
it is placed by a surgery or something? Not a surgery as such, right? But एक ऐसे करके ना ट्यूब होती है मोटी सी, ठीक है, उसके अंदर ये प्रेजेंट होता है इस तरह से, तो उस ट्यूब को इंसर्ट करते हैं थ्रू वजाइना एंड फिर धीरे से इसे वहाँ प्लेस कर देते हैं. सो देयर इज नो सर्जरी एज सच, बस थोड़ा सा एक ये कह लो कि एक टेक्निक होती है जिससे डॉक्टर्स या नर्सेज इसे इंसर्ट कर सकते हैं. Excuse me. Ma'am, noted. Just give me 1 minute. ओके राइट, सो ये चीज सबको क्लियर है, समझ में आ गया? One second. Yes, ma'am. ठीक है, देन अनदर वन इज द हार्मोनल मेथड. तो ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा हमारा? थर्ड पॉइंट. ठीक है, सो हार्मोनल मेथड के अंदर you know people either depend on pills such as eye pills वगैरह जिसके एडवर्टाइजमेंट भी आते हैं, राइट? सो देयर आर दीज पिल्स जिनके अंदर you know hormones होते हैं. So either they will postpone the ovulation or they will make the uterus hostile for the sperms, right? So normally ये जो hormonal pills होती हैं, these have a particular time span in which they need to be taken, right? तो इसीलिए इन्हें मॉर्निंग आफ्टर पिल्स भी बोलते हैं, क्योंकि इफ अ पर्सन is not sure if they are about to get pregnant or if the fertilization has taken place, तो उस केस में right after coitus or right after sexual intercourse the female can take these pills, so that will postpone the ovulation, और उसकी वजह से फिर क्या है कि fertilization नहीं होगा. ठीक है, लिखा हुआ है ना मॉर्निंग आफ्टर पिल, तो आई पिल वगैरह को यही बोलते हैं, राइट? उसके अलावा इम्प्लांट्स भी होते हैं. तो ये इम्प्लांट्स जो है दीज आर प्लेस्ड सर्जिकली, ओके, आर्म के अंदर लगाए जाते हैं. जैसे ये आर्म है ना, बहुत बड़ा गंदा सा डायग्राम मैंने, ये देखो ये आर्म है, राइट? तो यहाँ पे या फिर यहाँ पे इन इम्प्लांट्स को लगाया जाता है. सो ये इम्प्लांट्स जो है ये बहुत स्टेडी रेट पे धीरे 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 हॉर्मोन्स को रिलीज करते रहेंगे. अगेन उससे क्या होगा, दैट दिस मेक्स द यूट्रस हॉस्टाइल फॉर द स्पर्म्स.
So when the female feels कि नहीं अब I have to start my own family, I need my own kids, तो फिर वो जाकर इसे रिमूव करवा सकते हैं डॉक्टर से, ठीक है। फिर वो फिर से फर्टाइल हो जाएंगे एंड दे कैन कंसीव वेरी इजीली, राइट। नोट डाउन कर लो इन पॉइंट्स को। Why it is written as third? क्योंकि इससे पहले 2 कर लिया ना हमने, एक बैरियर मेथड किया है। Okay, ma'am. Okay, ma'am. Okay, done everyone? Yes, ma'am. All right. I'm done. Okay. चलो आगे चलते हैं, ठीक है। सो सी, कैन यू सी इन द पिक्चर? ये दिख रहा है यहाँ पे पिन जैसा कुछ डाला हुआ है इतने एरिया में, कैन यू सी? Yes. है ना, एन इम्प्लांट, ठीक है, ये एक इम्प्लांट है। ओके तो यहाँ पे हार्मोनल मेथड्स के आपको वो बताए हुए हैं कि उससे क्या होता है। तो देखो, एक तो इट प्रिवेंट्स ओव्यूलेशन, इट यू नो थिन्स द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस सो दैट इम्प्लांटेशन ना हो पाए, कि अगर मान लो फर्टिलाइजेशन हो भी गया तो इम्प्लांटेशन ना हो पाए, ठीक है। या फिर वो क्या करता है कि सर्विकल म्यूकस को थिक कर देता है। सर्विकल म्यूकस के थिक होने से क्या होता है, दैट अ लॉट ऑफ स्पर्म्स डाई राइट एट द सर्विक्स, ठीक है, सर्विक्स में उनकी डेथ हो जाती है।
Then the fourth one is chemical methods. Chemical methods के अंदर vaginal creams or gels which can kill the sperms are used, right? Ma'am, we have to write this. Yes, you have to write this. Yes, noted. ठीक है, अब इसके बाद आ जाता है हमारा फिफ्थ वाला लिखना, सर्जिकल मेथड्स. राइट, सर्जिकल मेथड में फर्स्ट इज वैसेक्टमी. वैसेक्टमी के अंदर जो वैस डिफरेंस होता है, दिस वन देख रहे हो वैस डिफरेंस यहाँ पे. व्हाट इज द रोल ऑफ वैस डिफरेंस? जब स्पर्म्स टेस्टिस में प्रोड्यूस हुए थे तो वहां से उन्हें कैरी करना टू द जेनाइटल, ओके, वो वैस डिफरेंस का फंक्शन है. अब अगर मैं वैस डिफरेंस को ही बीच में से कट कर दूं, कैन यू गाइस सी इट हैज बीन कट फ्रॉम इन बिटवीन. कट करके मैं यहाँ से इन्हें टाई कर दूंगी सो दैट दे कैन नॉट मीट अगेन, ये आपस में कभी भी मिल ना पाए. इसकी वजह से क्या होगा, दैट व्हाटएवर स्पर्म्स आर प्रोड्यूसिंग हियर वो आगे जा ही नहीं पाएंगे, वो यही रह जाएंगे नीचे की तरफ. ठीक है, सो बिकॉज ऑफ दैट द पर्सन बिकम्स इनफर्टाइल. ओके, वैसेक्टमी का मतलब है कि परमानेंटली ही हमने उस पर्सन को वो कर दिया कि वो आगे से अब कभी भी whenever the semen is released, because semen रिलीज होगा इसका मतलब ये नहीं है that there won't be any semen, but अब जो semen ejaculate होगा उसके अंदर sperms नहीं होंगे. Got it?
Noted everyone? Yes, miss. Please wait. Okay, okay. Yes, ma'am, noted. Okay. ओके, चलो आगे चलते हैं फिर। ठीक है, सो इट इज कंसिडर्ड टू बी अ परमानेंट मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल बिकॉज इसे हम रिवर्स नहीं कर सकते, राइट? जैसे इम्प्लांट है उसे भी रिमूव करवा सकते हैं, आईयूडीज है उन्हें भी रिमूव करवा सकते हैं, तो पर्सन विल बिकम फर्टाइल अगेन। बट अगर एक बार ये सर्जरी करवा ली तो इसे रिवर्स नहीं करवा सकते, ये परमानेंट मेथड है, राइट? Then the next one is tubal ligation, जिसे हम ट्यूबेक्टोमी भी बोलते हैं। जैसे उसे वैसेक्टोमी बोलते हैं ऐसे इसे ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं। ओके, इसके अंदर क्या करते हैं हम, फेलोपियन ट्यूब्स को कट करके टाई कर देंगे। अब देखो क्या होगा, यहाँ से जो भी ओवम रिलीज हुआ होगा ओवरी में से और फेलोपियन ट्यूब ने उसे कैच किया होगा, अगेन वो यहाँ तक आ ही नहीं पाया, ठीक है? यहाँ से आगे वो नहीं पहुंच पाएगा, ना ही यहाँ से स्पर्म्स यहाँ जा पाएंगे उसे फर्टिलाइज करने के लिए, ठीक है? तो फर्टिलाइजेशन विल नॉट टेक प्लेस। तो सिंपल है, लिखो ट्यूबल लाइगेशन या ट्यूबेक्टोमी और ये चीज लिख लो, फेलोपियन ट्यूब्स आर टाइड एंड कट ऑफ। Miss noted. हाँ, मैम दिस इज द सिक्स्थ मेथड कि वो सर्जिकल मेथड का कंटिन्यूएशन है ये। सर्जिकल मेथड्स का कंटिन्यूएशन है, तो दिस विल बी द सेकंड पार्ट, राइट? चले आगे। यस मैम। ठीक है, then did I tell you people about castration? बताया था castration के बारे में आप लोगों को? No, miss. नो मैम। बताया था? अच्छा, देखो कैस्ट्रेशन में क्या करते थे कि टेस्टीज ही रिमूव कर देते थे, राइट? द टेस्टीज वर रिमूव्ड ड्यूरिंग कैस्ट्रेशन। सो ये ना बहुत पहले की बात है,
मतलब पिछली सेंचुरी की बात है, 19th सेंचुरी. सो देयर व्हाट यूज्ड टू हैपन वाज कि कहीं यूरोप में देयर यूज्ड टू बी दिस ग्रुप ऑफ बॉयज. ठीक है, तो वो कॉयर में गाते थे. वो कॉयर बॉयज सुना ना आपने, कैसी उनकी पतली सी आवाज होती है, ऐसे वो जो मूवीज में दिखाते हैं, है ना. तो वो कॉयर बॉयज थे. ठीक है, नाउ सी व्हाट यूज्ड टू हैपन वाज, अब देखो कॉयर बॉयज को बहुत ज्यादा ट्रेनिंग दी जाती है उनकी वॉइस के लिए, उनको तरीका सिखाया जाता है कि आपको गाना कैसे है. नाउ व्हेन दीज बॉयज ग्रू अप, जब ये बड़े होते थे, इनको प्यूबर्टी हिट करती थी, या व्हेन दे बिकेम एडोलेसेंट, तो इनकी वॉइस ब्रेक होने लगती है क्योंकि आवाज मोटी हो गई, हैवी हो गई आवाज, है ना. आप लोग भी नोटिस करते होंगे कि धीरे धीरे बचपन में आवाज बहुत पतली थी, बट अभी देखो कैसी हो गई आवाज, भारी सी हो गई है ना. ठीक है, जैसे अभिक जब बोलता है, अभिक एक बार हेलो हाय बोलना कुछ. Yes, ma'am. हाँ देखो, सो अभिक्स वॉइस इज अ लिटिल हेवी. सो अभिक, वाज योर वॉइस ऑलवेज लाइक दिस? पहले पतली आवाज होगी, है ना. No, ma'am. पहले तो कुछ ज्यादा ही पतली थी. हाँ, पहले बहुत पतली थी ना, अब इट हैज बिकम हेवियर, इट हैज बिकम मोर ब्लंट. ठीक है, और गर्ल्स के साथ क्या होता है, व्हेन गर्ल्स बिकम एडोलेसेंट देयर वॉइस बिकम्स मोर श्रिल. तो मैं जब छोटी थी मेरी आवाज काफी हैवी थी. ठीक है, मेरी आवाज ऐसी नहीं थी, अब काफी पतली हो गई है. सो दोनों के केस में उल्टा होता है. अब कॉयर बॉयज के केस में क्या था, व्हेन देयर वॉइस बिकेम हेवी एंड व्हेन देयर वॉइस बिकेम वेरी ब्लंट एंड लेस श्रिल, तो अब जो उनके ट्रेनर्स या उनके टीचर्स थे उनको तो प्रॉब्लम होने लग गई कि यार अब ये तो बड़े हो गए, अब सारी ट्रेनिंग किसी और को देनी पड़ेगी, किसी और बच्चे को ढूंढ के. सो व्हाट स्टार्टेड हैपनिंग वाज कि इन बॉयज का जो टेस्टिकल होते थे वो रिमूव कर दिए जाते थे. ठीक है, देयर टेस्टीज वर रिमूव. नाउ व्हाट हैपेंस इज कि इफ यू रिमूव द टेस्टीज फ्रॉम अ मेल, उनके अंदर प्यूबर्टी कभी आएगी ही नहीं, बिकॉज द हॉर्मोन्स व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर द प्यूबर्टल चेंजेस, जो भी आपके प्यूबिक चेंजेस आते हैं, उन सब के लिए रिस्पांसिबल हॉर्मोन्स आर रिलीज्ड बाय द टेस्टीज ओनली. Okay, now since the testes are not there, hormones are not there, pubic changes will also be not there. तो इन boys की आवाज हमेशा वैसी ही रहती थी, ना इनकी बियर्ड आती थी, ना इनकी बॉडी पे हेयर ग्रोथ होता था, जैसे बॉयज का हेयर ग्रोथ होने लगता है एडोलेसेंस की एज के बाद, तो इनके साथ वो चीज नहीं होती थी. सो दिस केस वाज फेमस एज द कॉयर बॉयज केस, कि कॉयर बॉयज में कैस्ट्रेशन कर दिया जाता था. ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हो, कैस्ट्रेशन इज रिमूवल ऑफ टेस्टीज फॉर द एज ऑफ एडोलेसेंस. वैसे तो आफ्टर द एज ऑफ एडोलेसेंस भी करोगे तब भी वही है, लेकिन कैस्ट्रेशन का मेजर जो एग्जांपल है वो कॉयर बॉयज का रहता है. Miss noted. I'm noted. ओके, सो अभी इज आस्किंग मैम दिस इज कंटिन्यूएशन ऑफ सर्जिकल मेथड्स. हाँ, कह सकते हो एक तरह से सर्जिकल मेथड्स का ही कंटिन्यूएशन है ना. सी, अगर मैंने टेस्टीज ही रिमूव कर दिए, सो इज द मेल फर्टाइल एनीमोर? क्या वो स्पर्म्स प्रोड्यूस कर पाएगा? नहीं, क्योंकि जिस ऑर्गन में स्पर्म प्रोडक्शन होता है वो तो मैंने रिमूव ही कर दिया. ठीक है ना. सो दिस इज ऑल्सो यू कैन से दैट is a method of contraception. As such, ये ऐसे कोई मेथड है नहीं, because see the testes and the hormones that the testes release are actually responsible for bringing about those changes. ठीक है, so all those behaviors that the people start experiencing after the age of adolescence, जो मतलब एक सेक्सुअल बिहेवियर चेंजेस आते हैं, वो सब इन हॉर्मोन्स की वजह से ही होते हैं. तो अगर मैंने टेस्टीज ही रिमूव कर दिया, वो बिहेवियर भी नहीं आएगा. ठीक है ना, वो बिहेवियर अगर होगा ही नहीं तो फिर फर्टिलाइजेशन वाली बात भी नहीं आती.
ठीक है, तो इसे थोड़ा सा सेपरेट ही रखो, लेट्स जस्ट कीप इट एज अ फैक्ट, राइट। मिस मैंने गलती से नोट कर दिया। मतलब नहीं, नोट तो ये करना था, नोट करना था, बट मैं ये कह रही हूँ कि उस टॉपिक में नहीं है, ठीक है, इट्स अ सेपरेट टॉपिक, यू कैन जस्ट कंसीडर इट टू बी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, राइट। Now see what is lactation period. Lactation period is the time during which a mother or a female can actively produce milk. Okay? जब एक female actively milk produce कर सकती है through her mammary gland or her mammary tissue which is located in the breasts, तो हम उसे lactation period बोलते हैं. Normally this period is about an year and a half, इतना ही रहता है, ठीक है। और फर्स्ट 6 मंथ्स जो होते हैं लैक्टेशन पीरियड के, मतलब कि एक बेबी बॉर्न हुआ, उसके बॉर्न होने से लेके 6 मंथ्स तक का जो टाइम होता है उसमें जो मिल्क प्रोड्यूस होगा दैट इज कॉल्ड कोलोस्ट्रम, ठीक है। और वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बेबी के ग्रोथ के लिए, ठीक है। देन ये देखो, ये जो पूरा सिस्टम दिखाया हुआ है, दिस इज द सिस्टम ऑफ अ हेन, ओके। सो सी हेन के अंदर क्या होता है, ये ओविडक्ट है, ठीक है। यहाँ पे ये बहुत सारे आप देख रहे हो एग्स है, ये एग यहाँ से रिलीज होता है, आगे आते आते तो उसके ऊपर धीरे धीरे शेल फॉर्मेशन होता है। इसका मतलब कि ये शेल अंदर नहीं बने, ये शेल उसके सिस्टम में आगे जब ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है ओवम, उसके अंदर बनता है शेल, ठीक है। और फाइनली यहाँ तक पहुंचते पहुंचते उसके ऊपर पूरा शेल बन जाता है, एंड देन फ्रॉम द क्लोका इट इज एक्सपेल्ड आउट, ठीक है। ये देखो, दिस इज द रियल वन। मैम हाँ जी, मैम हैन सेल्यूलोज खाती है क्या? मैम तभी जो एग होता है वो इतना हेल्दी होता है। एंड सेल्यूलोज नहीं खाते, ठीक है। अब देखो एग जो है उसके अंदर है क्या, प्रोटीन है, फैट्स है, और ऊपर कैल्शियम वाला शेल है, तो वहाँ सेल्यूलोज का इतना कोई लेना देना नहीं है। ऐसे तो सेल्यूलोज तो बहुत ज्यादा कैटल्स खाती है, पर वो तो एग नहीं देती, ठीक है। हैन मेजरली आपकी ग्रेन्स खाती है, इंसेक्ट्स खाती है, छोटे छोटे वर्म्स वगैरह खाती है, राइट। ओके, नाउ सी, जैसे ह्यूमन या मैमल्स के अंदर दी जेनिटेलिया इज अ पीनिस, बर्ड्स के अंदर वैसा कुछ नहीं होता। बर्ड्स पर्टिकुलरली ये हेन्स और कॉक्स जो होते हैं, इनके अंदर देयर इज नो स्ट्रक्चर सच एज पीनिस, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है दैट बोथ मेल एंड फीमेल विल come in close proximity so that their cloacas can come in contact with each other, और फिर वहां से the male will release the system, ठीक है। तो this is called as the cloacal kiss। और कुछ बर्ड्स होती है जो ऑस्ट्रिच है, ईमू है, डक है, इनके पास पीनस होता है। ओके, सो सी ये एग है, दिस इज अ हैचेबल एग। तो इसके अंदर आप ये स्टेन देख रहे हो बीच में, है ना, पिगमेंटेड एरिया, दिस शोज कि अंदर इसमें डेवलपमेंट चल रहा है। Okay, now see, tell me, why is the egg of a hen or an ostrich bigger than the human egg? बहुत easy सा आंसर है, सोचो। Miss, because the hen and ostrich probably require more nutrition. That's why their eggs are bigger. Ma'am, I think they can consume more cellulose. They can consume cellulose. Ma'am, I think because ma'am they have a very big membrane and ma'am so much material inside the eggs. Why? Okay. और बताओ बाकी बच्चे। Mama sent on the chat box. हाँ जी,
Mama, send the answer on the chat box. Okay, one second. Ma'am, cause the egg is hatched outside the body. Yes, that's the right answer. देखो यहाँ पे क्या है कि जो egg है वो body के बाहर hatch हो रहा है, ठीक है? इसका मतलब है that it is not getting that kind of a protection that the human baby or the mammalian babies get, right? उनको ज्यादा प्रोटेक्शन चाहिए क्योंकि वो डायरेक्टली ही ऐसे बॉर्न होंगे एज ए बेबी, ठीक है ना? उनके पास ऐसी कोई आउटर शेल वाली कवरिंग नहीं होती, राइट? बट ये जो हेन्स के एग्स है इनको डेवलपमेंट जो बाकी का है वो बाहर ही करना है इन द शेल, राइट? तो उसके लिए जो इनका एग होता है वो बड़ा होता है बिकॉज सारा का सारा मटेरियल उसके अंदर होना चाहिए, ठीक है ना? बिकॉज मदर सारा टाइम उस एग के साथ में लिंक्ड नहीं है. यहाँ पे मदर सारा टाइम बेबी के साथ में अटैच्ड होती है बाय द मींस ऑफ प्लेसेंटा एंड अम्बिलिकल कॉर्ड. तो जो भी डाइट मदर की होगी वही बेबी के पास जाएगी. हेन्स के केस में ऐसा नहीं है. हेन खुद जितना मर्जी खा के हट्टी कट्टी हो जाए, एक बार उसने एग्स ले कर दिए तो वो एग्स में कितना भी न्यूट्रिशन नहीं डाल सकती, ठीक है? जितना उसके अंदर ऑलरेडी डल गया है, ऊपर शेल बन गया है, उसके बाद वही उसके भरोसे रहेगा, ठीक है? Okay, so these are the developmental stages of a chick. And these are the eggs of various birds. Okay, देखो कीवी का जो एग होता है वो सबसे बड़ा होता है कंपेयर टू द बॉडी एंड द साइज ऑफ द मदर. और इंक्यूबेशन पीरियड भी बहुत ज्यादा है, कम से कम 90 डेज तक जो मदर है वो इस एग को कैरी करती है. देख रहे हो मदर कितनी कमजोर सी है खुद और एग कितना बड़ा है. सो व्हाट इज द रीजन क्यों इतना बड़ा होता है एग जबकि कीवी तो बहुत छोटा सा होता है? मैम ऑस्ट्रिच एग सबसे बिगेस्ट नहीं होता? वो तो होता है साइज वाइज. यहाँ हम बॉडी की बात करें कि अगर आप बॉडी को कंपेयर करो और एग को कंपेयर करो तो उस मामले में कीवी का जो एग है वो उसकी बॉडी के हिसाब से काफी बड़ा है. जब ये एग ब्रेक होगा इसमें से बहुत छोटा सा कीवी निकलेगा. तो ऐसा क्यों है कि इतना बड़ा एग शेल मिला हुआ है उसे? मैम उसे बहुत प्रोटेक्शन चाहिए इसलिए. What else? Ma'am, I think it requires more space to respond. और बताओ. मैम आई थिंक लाइक जो बेबी के बोन्स होते हैं वो बहुत ही वीक होते हैं तो उसके प्रोटेक्टिव लेयर के लिए इसलिए. देखो क्या होता है कि जो कीवी का बेबी होता है ना, जब वो एग में से बाहर आता है तो वो बहुत ज्यादा डेवलप्ड होता है. वो खुद से अपने काम कर सकता है, उसकी साइज भी अच्छी डेवलप्ड होती है. जैसे नाट जियो वगैरह पे सबने देखा होगा कि ये जब बेबीज बॉर्न होते हैं तो कितने टाइम तक तो वो देख भी नहीं पाते. उनकी मम्मा उनको ऐसे पिट्स के अंदर रखती है बचा बचा के और खाना ला ला के देती है. कई बर्ड्स में देखा होगा, है ना? लेकिन ये जो कीवी होता है ये ऑलरेडी इतना डेवलप होकर निकलता है एग में से कि ये खुद से अपने काम कर सकता है. साइज छोटा होगा इसका लेकिन इट इज क्वाइट डेवलप्ड एज कंपेयर टू अदर बर्ड्स बेबीज. इसीलिए इसका एग ज्यादा बड़ा है क्योंकि ये ज्यादा टाइम तक एग में रहा और ज्यादा अच्छे से डेवलप हो गया, ठीक है ना? यस मैम. ठीक है. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एन एग. ये उसके इनसाइड्स है, शेल है, बाकी थिन एल्ब्यूमिन है. एल्ब्यूमिन इज अ प्रोटीन. ये चलाजा है, ठीक है? चलाजा बेसिकली डिनोट्स दैट इट्स द बेस. ये थिक एल्ब्यूमिन है, बीच में ये डिस्क है, जर्मिनल डिस्क, दैट शोज कि यहाँ पे जो एम्ब्रियो है ये डेवलप हो रहा है. ये मेम्ब्रेन है, वाइटलिन मेम्ब्रेन, दिस इज द योक. तो ये फिर से चलाजा एंड दिस इज द एयर सेल so that the embryo can respire. मैम हम शेल को क्यों नहीं कंज्यूम कर पाते? मैम उसमें ऐसा क्या होता है? आप बताओ क्यों नहीं कंज्यूम करते हम शेल को? मैम मैंने सुना था कैल्शियम तो अच्छा होता है, पर फिर मैम क्यों नहीं? बट वो एडिबल फॉर्म में होना चाहिए ना. इट शुड बी सच जिसे आप खा सको, जिसे आप कंज्यूम कर सको. अगर उसकी फॉर्म वैसी नहीं है तो आप उसको नहीं खा पाओगे. मैम अगर हमने खा लिया तो क्या हो जाएगा?
मैम हम और सिर्फ इससे नहीं कोई कर सकते। नुकसान नहीं होगा, नहीं नुकसान नहीं होगा, बना तो कैल्शियम से ही है, लेकिन आप उसको खा नहीं सकते हो, वो उस फॉर्म में नहीं है, ठीक है। अब जैसे चिकन खाते हो, तो चिकन की फ्लैश क्यों खाते हो, उसकी फेदर क्यों नहीं खाते? क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमें उससे कुछ नुकसान हो जाएगा, बट वो इस फॉर्म में है ही नहीं कि हम उसको खा सके, एडिबल नहीं है, उसको स्वॉलो नहीं कर पाओगे आप, ठीक है ना। Yes, तो ma'am. whatever thing is not edible or which cannot be swallowed, हम उसे नहीं खाते। ओके, इंडियन एलिफेंट का जेस्टेशन पीरियड पता है किसी को? जेस्टेशन पीरियड का मतलब होता है द पीरियड और द टाइम स्पैन फॉर विच द मदर कैरीज द बेबी। ओके, जब मदर बेबी को जितने टाइम के लिए भी कैरी करेगी, दैट इज द जेस्टेशन पीरियड। तो ह्यूमंस का जेस्टेशन पीरियड क्या है? 9 months. 9 months। क्या somebody was saying something? Miss, what Mom, is I the was difference also saying between 9. gestation and pregnancy? Yes, Shashwat, what are you saying? Miss, what is the difference between gestation and pregnancy? Gestation is the time period for which the mother will carry the baby, ठीक है, right from the time when it was fertilized. Pregnancy is the term we use when the embryo gets implanted. जब वो यूट्रस में आके अटैच हो जाता है, तब हम उसे प्रेगनेंसी कंसिडर करते हैं, उससे पहले हम उसको प्रेगनेंसी नहीं बोलते, ठीक है। तो which one is longer, pregnancy or gestation period? Miss, gestation period. gestation period because it includes both fertilization and pregnancy, दोनों के टाइम को इंक्लूड करके हम gestation period बोलते हैं, ठीक है। whereas pregnancy में हम सिर्फ तभी का टाइम कंसीडर करते हैं जब वो इम्प्लांट हो गया। ओके, सो ये जो एलिफेंट होता है, इसका gestation period is about कुछ 3 years के आसपास होता है, मतलब 2.5-3 साल के आसपास रहता है एलिफेंट का gestation period, ठीक है। Around 25 months. हाँ, मतलब इट इज अप्रोक्सीमेटली 22 to 25 मंथ्स, इतना ही रहता है, ठीक है। ओके, नाउ मूविंग फर्दर। देखो, पहले हमें लगता था कि एलिफेंट ही एक ऐसा एनिमल है जिसका जेस्टेशन पीरियड सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट है। ओके, वी यूज्ड टू बिलीव कि एलिफेंट हैज द लॉन्गेस्ट जेस्टेशन पीरियड, बट लेटर ऑन इट वाज डिस्कवर्ड कि दिस इज यू नो फिश। ओके, इट्स एन एक्वेटिक एनिमल, इसका नाम है फ्रिड शार्क बीट एलिफेंट। फ्रिड शार्क, सॉरी, ये तो पूरा वो है सेंटेंस है। फ्रिड शार्क्स जो होती है, ये एलिफेंट्स को हरा देती है इन टर्म्स ऑफ जेस्टेशन पीरियड। तो इनका 3.5 ईयर निकला था, मतलब अप्रोक्सीमेटली डबल ऑफ दैट ऑफ एन एलिफेंट, राइट। क्योंकि एलिफेंट का अबाउट 22 या 25 मंथ्स देख रहे हैं हम, तो 2.5 साल के करीब है, इनका 3.5 साल है, ठीक है। सो दिस इज अ लॉन्गर and you can say it's rather the longest gestation period on earth, right? और इसका सबसे छोटा होता है। हाँ, बोलो बोलो पावनी। अम्मी स्नेक है? नहीं, स्नेक नहीं है, इट्स द शार्क, ठीक है। एंड दीज opossums have the shortest gestation period, only 13 days. ओहो, पेन गायब हो Ma'am, गया। could you show the name, that one? One second. मेरा नेम। Thank you, ma'am. Okay, and these have the smallest gestation period of about 13 days only, ठीक है। तो आज हम यहीं तक रुकते हैं, कल फिर हम, या जब भी नेक्स्ट क्लास है उसके अंदर, देन वी विल टॉक अबाउट द रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स और रिप्रोडक्टिव मेथड्स इन अदर ऑर्गेनिजम्स अदर देन मैमल्स, राइट। Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Bye, ma'am. Okay, bye everyone. Thank you, Miss. ना